Hello dear students, today we are going to start a third lesson, a walk to the river. Okay, the name of the lesson is a walk to the river. It means river पे walk पे जाना है. Okay, let's see. Kapil and his uncle are going for a walk to the river. See, this is the Kapil and this is his uncle. Both are going for a walk. Okay, दोनों भी कहाँ पे जा रहे हैं? Walk पे. पर walk पे कहाँ पे जा रहे हैं? To the river. They meet Abu on the way. Okay, when Kapil and his uncle were going for walking to the river. On the way, they meet to the Abu. Okay, रास्ते में उन्हें कौन मिला? अबू मिला. Can I also come with you? Can I also come with you? तो अबू को अब पता चला कि ये दोनों तो घूमने जा रहे हैं. So अबू said, Can I also come with you? मैं भी आपके साथ आऊं? Sure, you can. Then uncle said, Sure, you can. हाँ, तुम आ सकते हो. Thank you. I will tell my mother. देखिए, यहाँ पे अबू कितना समझदार बेटा है या फिर कितना मैच्योर है. He is possessing a good manners within him. कैसे? जैसे कि जैसे ही अंकल ने उससे बोला कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, दैट टाइम अबू ने सबसे पहले क्या सोचा कि मुझे अपनी मम्मी को बताना चाहिए. राइट? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिना बताए चले जाते हैं. तो आपकी मम्मी भी तो परेशान होगी ना, मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरी बेटी कहाँ गई है. So it is very important, if you are going to somewhere, you should always inform your parents. Okay? तो अबू ने भी सबसे पहले वही अच्छा समझा कि मुझे अपनी मम्मी को बताना चाहिए. So अबू ने कहा, Thank you, I will tell my mother. अबू comes back. Come, let's go. अबू अपनी मम्मी को बता के वापस आया and उसने कहा, Come, let's go. चलो चलते हैं. They reach the river bank. अब now Kapil, Abu and Kapil's uncle. See, this is Kapil, this is Abu, and this is Kapil's uncle. These three people reach to the river bank. See, this is the river bank. This is the river, and this is the river bank. Okay. Do you see that bridge? It is very old, but it is very strong. See. अब river bank पे आ ही गए हैं तो अंकल ने क्या बोला? Do you see that bridge? This is the bridge. Okay? And क्या है? The bridge is very old. बहुत पुराना bridge है. But it is very strong. And ये बहुत strong भी है. Look, there is a bus on the bridge. Okay? Look, there is a bus on the bridge. अब देखो, अबू यहाँ पे pointing कर रहा है बस की तरफ. Okay? Abu is pointing towards the bus. So Abu said, Look, there is a bus on the bridge. देखो वहाँ पे बस है ब्रिज पे. Okay? Uncle, where does the bus go? See, यहाँ पे कपिल जो है अपने अंकल से पूछ रहा है. Uncle, where does the bus go? अंकल बस कहाँ पे जाती है? Then uncle said, It goes to Sevapur. This bus goes to Sevapur. Okay? Next. अब देखो यहाँ पे अबू क्या बोल रहा है. Please, can we also go to Sevapur? अब देखो अबू यहाँ पे अंकल से बोल रहा है, अंकल क्या हम लोग भी सेवापुर जा सकते हैं? Then uncle said, Oh yes, we can go on a Sunday. So uncle ने कहा, yes, हम लोग जा सकते हैं, but कब? On a Sunday. Because Sunday is a holiday. You all students are free on a Sunday. So that's why you can enjoy wherever and whatever you want. Thank you, uncle. Thank you, uncle. Okay? और दोनों बच्चों ने देखो यहाँ पे दोनों भी बॉयज यहाँ पे जंपिंग कर रहे हैं with happily and they are saying thank you uncle. Okay, this is how the lesson was. I hope आप ये lesson बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. Thank you very much. Hello dear students, now we are going to start the question and answers to solve. See, write true, T or not true
NT. Okay. Here we are given some sentences. If the sentence is true, then write the T in the box. And if sentence is not true, then write the NT in the box. अगर sentence true है तो आप बॉक्स में T राइट करो, और अगर sentence not true है तो बॉक्स में NT राइट करो. See, Kapil is walking with his father. Is this sentence true? See, देखिए पहले ही लाइन में हमने क्या पढ़ा था? कपिल एंड हिज अंकल. इट मीन्स कपिल जो है वो तो अंकल के साथ वॉक कर रहा है, बट हियर इट इज गिवन फादर, तो ये क्या है? नॉट ट्रू हो गया. तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे एंटी. कपिल एंड अबू गो टू द पार्क. आर दे गोइंग टू द पार्क? नो, दे आर गोइंग टू द बैंक ऑफ द रिवर. So this sentence is also empty. Kapil and Abu see an old bridge. See an old bridge. तो कपिल एंड अबू ने ओल्ड ब्रिज ही तो देखा था. That is true. There is a bus on the bridge. Yes, ब्रिज पे तो बस ही थी, ये भी हमने देखा था. See, there is a bus on the bridge, right? तो ये भी तो ट्रू सेंटेंस है. So this is true. The bus goes to Kamlapur. Is that bus? Sorry, does that bus? Sorry, does that bus go to Kamlapur? No, bus goes to Sevapur. But here it is given bus goes to Kamlapur. तो ये sentence भी कैसा हो गया? Not true. So here we would write this is not true. अब see, so this is how we have completed the true and not true of this question. Thank you very much. Hello dear students. Now we are going to start a next question. Okay, to solve. Tell your teacher the answers. Okay, it means here are some questions. You should answer the questions to your teachers. Your teacher will ask you the questions and you are to answer the questions. Okay. Then write them in your notebook. See, after giving the answer, you have to write these questions and answers in your notebook. Okay. See, who do Kapil and his uncle meet on the way? Kapil and his uncle. Who do they meet on the way? They meet on the way Abu. So here, देखिए यहाँ पे start किया है आंसर का. They meet Abu. Okay. On the वे. ओके, या फिर दे मीट अबू, आप इतना भी राइट कर सकते हो. नेक्स्ट, वेयर आर कपिल एंड हिज अंकल गोइंग? ओके, कपिल एंड हिज अंकल, वेयर आर दे गोइंग? दे आर, सी हियर, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक. वो वॉक पे जा रहे, पर कहाँ पे? इन द पार्क और अ मूवी थिएटर और अ मॉल, और वेयर? They are going to the river. Here, river. What does Kapil's uncle say about the bridge? Okay. When they reached the river, that Kapil's uncle showed the bridge to the children, right? And तो वो तो उन्होंने क्या कहा उस ब्रिज के बारे में? What did he say? He said it is very old. Bridge तो old है, but it is very strong. But very strong. Bridge is very strong. When can Abu and Kapil go to Sevapur? अब अबू एंड कपिल सेवापुर पे कब जा सकते हैं? तो एग्जैक्ट तो हम लोग जानते हैं, यूजुअली दे कैन गो ऑन संडे. सो दे कैन गो ऑन संडे. Okay, thank you very much. Hello dear students, now we are going to study about pronouns. देखिए, इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं what are the nouns. Nouns यानी किसी का भी नेम हो सकता है, लाइक किसी गर्ल का नेम, किसी बॉय का नेम, किसी प्लेस का नेम, फ्रूट का नेम, ओके, या फिर किसी ट्री का नेम. तो हर एक का नेम, जो भी एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड नाउन. ओके, पर समटाइम्स ऐसे होता है कि नाउन की जगह हम लोग कुछ अलग वर्ड्स का यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन. जैसे कि देखिए, आई,
यू, वी, ये सारे क्या है? प्रोनाउंस हैं। अगर मैं आई मतलब मैं, तो मेरा नाम तो आई नहीं है। एज यू ऑल नो आई एम अ तेजू मिस, पर हर बार तो मैं तेजू मिस तो वर्ड नहीं बोल सकती हूँ। तो दैट्स वाई मैं हर बार क्या यूज कर लूंगी? आई। तो आई इज प्रोनाउन। ओके, मतलब किसी पर्सन के नेम के प्लेस पे, या फिर किसी बॉय के नेम के प्लेस पे, या फिर किसी थिंग के नेम के प्लेस पे, या फिर किसी गांव के नेम के प्लेस पे जो दूसरा वर्ड रिप्लेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। यू। अब देखिए मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो आप तो बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, हर किसी का अपना अलग अलग नेम है, पर मैं सबका नेम तो यूज नहीं कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई आई विल से यू। तो यू भी क्या हो गया? प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज वी। वी मतलब हम सब लोग। तो हम सब में मैं भी हूँ, आप भी हो, हमारे स्कूल के टीचर्स भी हैं, आंटी भी हैं, तो वी ऑल। पर सबका नेम तो हम लोग यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई अब देखिए हर प्लेस पे हर बार हम लोग नेम्स यूज मतलब नाउन्स यूज नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हम लोग कुछ वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, तो उन्हें प्रोनाउन बोला जाता है। तो जब हम हैं तब मैं सबका नेम तो यूज नहीं कर पाऊंगी, तो तब हम लोग क्या यूज करेंगे? वी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, तो देखिए अगर गर्ल है, जैसे कि अगर गर्ल का नेम है नंदिनी, ओके, गर्ल का नेम है नंदिनी, तो देखिए अगर मैं बोलूंगी नंदिनी इज अ गुड गर्ल, वो नंदिनी इज अ गुड गर्ल, वो क्लास 1 में पढ़ती है, वो स्कूल में रोज आती है, वो बहुत अच्छी है, तो हर बार मैंने नंदिनी नहीं बोला, हर बार मैंने वो बोला। लाइक सी, नंदिनी इज अ गुड गर्ल, शी स्टडीज इन अ क्लास 1, she lives near to the school, she works very hard, she loves to play, she loves dancing। तो हर बार मैंने क्या यूज किया? सी। बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट नंदिनी। तो देखिए हर बार जब मैं नंदिनी के बारे में बात कर रही थी, मैंने यूज क्या किया? सी। तो शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। यहाँ पे दिया नहीं है, बट शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। अगर बॉय है, अगर चलो बॉय, जैसे कि अगर ओम है, मैं ओम के बारे में बात कर रही हूँ, तो हर बार मैं ओम 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 तो नहीं यूज करूंगी। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट यूजिंग ही। तो ही जो है, ही इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। तो देखिए आप समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए कि ऐसे कोई भी वर्ड जिन्हें रिप्लेस किया जाता है नाउन्स के साथ, तो दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो देखिए, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विथ माई अंकल। तो जो अभी हमने जो लेसन पढ़ा उसमें अंकल के साथ कौन जा रहा था? कपिल जा रहा था। अब कपिल बता रहा है कि मैं मेरे अंकल के साथ वॉक पे जा रहा हूं, तो इसलिए कपिल थोड़ी ना बोलेगा कपिल जा रहा है, कपिल तो बोलेगा मैं जा रहा हूं। तो इट मीन्स आई। डू यू सी दैट बस? यू क्या हो गया? प्रोनाउन। कैन वी ऑल्सो गो टू सेवापुर? अब जब देखिए वी, कैन वी ऑल्सो गो टू सेवापुर, जैसे कि देखिए अबू ने पूछा था हम लोग जा सकते हैं क्या? हम लोग मतलब कौन कौन? कपिल, अंकल एंड अबू, तीनों भी। तो उसने थोड़ी ना नेम्स लिए, उसने क्या किया? तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया, दैट इज वी। ओके, तो वी में वो उन तीनों के बारे में बात कर रहा था। इज दैट क्लियर?